امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد سیاست و حکومت کی باغیں مستقل طور پر جاہلیت کے ہاتھوں میں چلی گئیں اور بنی امیہ، بنی عباس اور پھر ترکیون نسل بادشاہوں کا اقتدار قائم ہوا۔ ان حکومتوں نے جو خدمات انجام دیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف یونان، روم اور عجم کے جاہلی فلسفوں کو جوں کا توں لے کر مسلمانوں میں پھیلا دیا، اور دوسری طرف علوم و فنون اور تمدن و معاشرت میں جاہلیت اولیٰ کی تمام گمراہیوں کو اپنی دولت اور طاقت کے زور سے شائع و ضائع کیا۔ عباسی خاندان کے تنزل نے مزید نقصان یہ پہنچایا کہ ابتدائی عباسی خلفاء کے بعد دنیاوی اقتدار کی باغیں جن لوگوں کے ہاتھ میں آئیں وہ علوم دینی سے بالکل ہی کورے تھے۔ ان میں اتنی صلاحیت بھی نہ تھی کہ قضاء اور افتاء کے عہدوں کے لیے اہل آدمیوں کو منتخب کر سکتے۔ اپنی جہالت اور سہولت پسندی کی وجہ سے وہ احکام شریعہ کی تنفیذ کا کام ایسے لگے بندھے طریقوں پر کرنا چاہتے تھے جن میں کسی کد و کاوش کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے لیے تقلید جامد ہی کا راستہ موزوں تھا۔ مزید برآں دنیا پرست علماء نے انہیں مذہبی مناظروں کی چاٹ بھی لگا دی، اور پھر شاہی سرپرستی میں یہ مرض اتنا پھیلا کہ اس نے تمام مسلم ممالک میں فرقہ بندی، اختلاف اور سر پھٹول کی وبا پھیلا دی۔ عمرہ و سلاطین کے لیے تو مذہبی مناظرے مرغ بازی اور بٹیر بازی کی طرح محض ایک تفریح تھے، مگر عام مسلمانوں کے لیے یہ وہ قینچیاں تھیں جنہوں نے ان کی دینی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ 5ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے یہ حال ہو گیا کہ نمبر 1، یونانی فلسفے کی اشاعت سے عقائد کی بنیادیں ہل گئیں۔ محدثین فقہا علوم عقلیہ سے ناواقف تھے، اس لیے نظام دین کو مقتضائے زمانہ کے مطابق معقولی انداز سے نہ سمجھا سکتے تھے، اور زجر و توبیخ سے اعتقادی گمراہیوں کو دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ علوم عقلیہ میں جن لوگوں کے کمال کا شہرہ تھا وہ نہ صرف یہ کہ علوم دینیہ میں کوئی بصیرت نہ رکھتے تھے، بلکہ خود علوم عقلیہ میں بھی انہیں کوئی مجتہدانہ نظر حاصل نہ تھی۔ وہ فلاسفہ یونان کے بالکل غلام تھے۔ ان میں کوئی ایسا بالغ النظر آدمی نہ تھا جو تنقید کی نگاہ سے اس یونانی لٹریچر کا جائزہ لیتا۔ انہوں نے وحی یونانی کو اٹل سمجھ کر جوں کا توں تسلیم کر لیا، اور وحی آسمانی کو توڑنا مروڑنا شروع کیا تاکہ وہ وحی یونانی کے مطابق ڈھل جائے۔ ان حالات کا عام مسلمانوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ دین کو ایک غیر معقول چیز سمجھنے لگے۔ اس کی ہر چیز انہیں مشکوک نظر آنے لگی، اور ان میں یہ خیال جاگزی ہوتا چلا گیا کہ ہمارا دین ایک چھوئی موئی کا درخت ہے جو عقلی امتحان کی ایک ذرا سی ٹھیس ہی سے مرجھا جاتا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری اور ان کے متبعین نے اس رو کو بدلنے کی کوشش کی، مگر یہ گروہ متکلمین کے علوم سے تو واقف تھا لیکن معقولات کے گھر کا بیدی نہ تھا، اس لیے وہ اس عام بے اعتقادی کی رفتار کو بدلنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ معتزلہ کی ضد میں اس نے بعض ایسی باتوں کا التزام کر لیا جو فی الحقیقت عقائد دین میں سے نہ تھیں۔ نمبر 2، جاہل فرما رواؤں کے اثر سے اور علوم دینی کو مادی وسائل کی تائید بہم نہ پہنچنے کی سبب سے اجتہاد کے چشمے خشک ہو گئے، تقلید جامد کی بیماری پھیل گئی، مذہبی اختلافات نے ترقی کر کے ذرا ذرا سے جزیات پر نئے نئے فرقے پیدا کر دیے، اور ان فرقوں کی باہمی لڑائیوں سے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا علی شفا حفرۃ من النار ہیں۔ نمبر 3، مشرق سے مغرب تک مسلم ممالک میں ہر طرف اخلاقی انحطاط رونما ہو گیا، جس کے اثر سے کوئی طبقہ خالی نہ رہا۔ قرآن اور نبوت کی روشنی سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی بڑی حد تک خالی ہو گئی۔ علماء، عمرہ، عوام سب بھول گئے کہ خدا کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی کوئی چیز ہے جس کی طرف ہدایت و رہنمائی کے لیے کبھی رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 4، شاہی درباروں، خاندانوں اور حکمران طبقوں کی عیاشانہ زندگی اور خود غرضانہ لڑائیوں کی وجہ سے عموماً رعایا تباہ حال ہو رہی تھیں۔
ناجائز ٹیکسوں کے بار نے معاشی زندگی کو نہایت خراب کر دیا تھا۔ تمدن کو حقیقی فائدہ پہنچانے والے علوم و صنائع روبت تنزل تھے، اور ان فنون کا زور تھا جو شاہی دربار میں قدر و منزلت رکھتے تھے، مگر اخلاق و تمدن کے لیے غارت گر تھے۔ آثار سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ عام تباہی کا وقت قریب آ لگا ہے۔ یہ حالات تھے جب 5ویں صدی کے وسط میں امام غزالی پیدا ہوئے۔ حاشیہ: 450 ہجری بمطابق 1055 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 505 ہجری بمطابق 1111 عیسوی میں وفات پائی۔ انہوں نے ابتداً اسی طرز کی تعلیم حاصل کی جو اس زمانے میں دنیاوی ترقی کا ذریعہ ہو سکتی تھی۔ انہی علوم میں کمال پیدا کیا جن کی بازار میں مانگ تھی، پھر اس جنس کو لے کر وہیں پہنچے جہاں کے لیے تیار ہوئے تھے، اور ان بلند ترین مراتب تک ترقی کی جن کا تصور اس زمانے میں کوئی عالم کر سکتا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی نظامیہ بغداد کے ریکٹر مقرر ہوئے۔ نظام الملک طوسی، ملک شاہ سلجوقی اور خلیفہ بغداد کے درباروں میں اعتماد حاصل کیا۔ وقت کے سیاسیات میں یہاں تک دخیل ہوئے کہ سلجوقی فرما روا اور عباسی خلیفہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوتے تھے انہیں سلجھانے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ دنیاوی عروج کے اس نقطے پر پہنچ جانے کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب رونما ہوا۔ اپنے زمانے کی علمی، اخلاقی، مذہبی، سیاسی اور تمدنی زندگی کو جتنی گہری نظر سے دیکھتے گئے، اسی قدر ان کے اندر بغاوت کا جذبہ ابھرتا چلا گیا، اور اسی قدر ان کے ضمیر نے زیادہ زور سے صدا لگانی شروع کی کہ تم اس گندے سمندر کی شناوری کے لیے نہیں ہو، بلکہ تمہارا فرض کچھ اور ہے۔ آخرکار ان تمام اعزازات، فوائد و منافع اور مشاغل پر لات مار دی جن کے جنجال میں پھنسے ہوئے تھے۔ فقیر بن کر سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے، گوشوں اور ویرانوں میں غور و خوض کیا، چل پھر کر عام مسلمانوں کی زندگی کا گہرا مشاہدہ کیا، مدتوں تک مجاہدات و ریاضات سے اپنی روح کو صاف کرتے رہے۔ 38 سال کی عمر میں نکلے تھے، پورے 10 برس کے بعد 48 سال کی عمر میں واپس ہوئے۔ اس طویل غور و فکر و مشاہدے کے بعد جو کام کیا وہ یہ تھا کہ بادشاہوں کے تعلق اور ان کی وظیفہ خواری سے توبہ کی، جدال و تعصب سے پرہیز کرنے کا دائمی عہد کیا، ان تعلیمی ادارات میں کام کرنے سے انکار کر دیا جو سرکاری اثر میں ہوں، اور طوس میں خود اپنا ایک آزاد ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے میں وہ چیدہ افراد کو اپنے خاص طرز پر تعلیم و تربیت دے کر تیار کرنا چاہتے تھے، مگر غالباً ان کی یہ کوشش کوئی بڑا انقلاب انگیز کام نہ کر سکی، کیونکہ 5-6 سال سے زیادہ انہیں اس طرز خاص پر کام کرنے کی اجل ہی نے مہلت نہ دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کام کا خلاصہ یہ ہے: اولاً انہوں نے فلسفہ یونان کا نہایت گہرا مطالعہ کر کے اس پر تنقید کی، اور اتنی زبردست تنقید کی کہ اس کا وہ رعب جو مسلمانوں پر چھا گیا تھا کم ہو گیا، اور لوگ جن نظریات کو حقائق سمجھے بیٹھے تھے، جن پر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو منطبق کرنے کے سوا دین کے بچاؤ کی کوئی صورت انہیں نظر نہ آتی تھی، ان کی اصلیت سے بڑی حد تک آگاہ ہو گئے۔ امام کی اس تنقید کا اثر مسلم ممالک ہی تک محدود نہ رہا بلکہ یورپ تک پہنچا، اور وہاں بھی اس نے فلسفہ یونان کے تسلط کو مٹانے اور جدید دور تنقید و تحقیق کا باب فتح کرنے میں حصہ لیا۔ ثانیاً انہوں نے ان غلطیوں کی اصلاح کی جو فلاسفہ اور متکلمین کی ضد میں اسلام کے وہ حمایتی کر رہے تھے جو علوم عقلیہ میں گہری بصیرت نہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ اسی قسم کی حماقتیں کر رہے تھے جو بعد میں یورپ کے پادریوں نے کی، یعنی مذہبی عقائد کے عقلی ثبوت کو بعض صحیح غیر معقول باتوں پر موقوف سمجھ کر خواہ مخواہ انہیں اصول موضوعہ قرار دے لینا، پھر ان اصول موضوعہ کو بھی عقائد دین میں داخل کر کے ہر اس شخص کی تکفیر کرنا جو ان کا قائل نہ ہو، اور ہر اس برہان یا تجربے یا مشاہدے کو دین کے لیے خطرہ سمجھنا جس سے ان خود ساختہ اصول موضوعہ کی غلطی ثابت ہوتی ہو۔ اسی چیز نے یورپ کو بلاخر دہریت کی طرف دھکیل دیا، اور یہی مسلم ممالک میں بھی شدت کے ساتھ کار فرما تھی اور لوگوں میں بے اعتقادی پیدا کر رہی تھی۔ مگر امام غزالی نے
बर वक्त उसकी इस्लाह की और मुसलमानों को बताया कि तुम्हारे अकायद दीनी का इस्बात उन गैर माकूलात के इल्ज़ाम पर मुनहसर नहीं है, बल्कि इसके लिए माकूल दलाइल मौजूद है, लिहाजा उन चीज़ों पर इसरार फजूल है। सालिसन उन्होंने इस्लाम के अकायद और असासियात यानी फंडामेंटल्स की ऐसी माकूल ताबीर पेश की जिस पर कम अज कम इस जमाने के और बाद की कई सदियों तक के माकूलात की बिना पर कोई एतराज ना हो सकता था। इसके साथ उन्होंने अहकाम शरीयत और इबादत व मनासिक के इसरार व मसाले भी बयान किए और दीन का एक ऐसा तस्वर लोगों के सामने रखा जिससे वो गलत फहमियां दूर हो गईं, जिनकी बिना पर यह गुमान होने लगा था कि इस्लाम अक्ली इम्तहान का बोझ नहीं सहार सकता। राबियन, उन्होंने अपने वक्त के तमाम मजहबी फिरकों और इनके इख्तलाफात पर नजर डाली और पूरी तहकीक के साथ बताया कि इस्लाम और कुफ्र की इम्तियाजी सरहदें क्या हैं, किन हुदूद के अंदर इंसान के लिए राय और तावील की आज़ादी है और किन हुदूद से तजावुज करने के मानी इस्लाम से निकल जाने के हैं, इस्लाम के असली अकायद कौन से हैं और वो क्या चीजें हैं जिन्हें ख्वामख्वा अकायद दीन में दाखिल कर लिया गया है। इस तहकीकात ने एक दूसरे से लड़ने झगड़ने और तकफीरबाजी करने वाले फिरकों की सुरंगों में से बहुत सी बारूद निकाल दी और लोगों के ज़ाविया नजर में वुसअत पैदा की। खामसन, उन्होंने दीन के फहम को ताज़ा किया, बेशऊर मजहबियत को फजूल ठहराया, तकलीद जामिद की सख्त मुखालफत की, लोगों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के चश्मे फैज की तरफ फिर से तवज्जो दिलाई, इज्तिहाद की रूह को ताज़ा करने की कोशिश की और अपने अहद के तकरीबन हर ग्रोह की गुमराहियों और कमजोरियों पर तनकीद करके इस्लाह की तरफ आम दावत दी। सादसन, उन्होंने उस निज़ाम तालीम पर तनकीद की जो बिल्कुल फरसूदा हो चुका था और तालीम का एक नया निज़ाम तजवीज़ किया। उस वक्त तक मुसलमानों में जो निज़ाम तालीम कायम था उसमें दो किस्म की खराबियां पाई जाती थीं। एक ये कि उलूम दुनिया और उलूम दीन अलग अलग थे और उसका नतीजा लामुहाला तफरीक और दीन और दुनिया की सूरत में जाहिर होता था, जो इस्लामी नुक्ता नज़र से बुनियादी तौर पर गलत है। दूसरे ये कि शरई उलूम की हैसियत से बाज ऐसी चीज़ें दाखिल दर्स थीं जो शरई अहमियत न रखती थीं और उसका नतीजा ये था कि दीन के मुतालिक लोगों के तसव्वुरात गलत हो रहे थे और बाज गैर जिन्स की चीज़ों को अहमियत हासिल हो जाने की वजह से फिरका बंदियां पैदा हो रही थीं। इमाम गजाली ने उन खराबियों को दूर करके एक समोया हुआ निज़ाम बनाया जिसकी उनके हमअसरों ने सख्त मुखालफत की, मगर बिलाखिर तमाम मुस्लिम ममालिक में उसके उसूल तस्लीम कर लिए गए और बाद में जितने नए निज़ामात तालीम बने वो तमाम तर उन्हीं खुतूत पर बने जो इमाम ने खींच दिए थे। इस वक्त तक मदारिस अरबिया में जो निसाब पढ़ाया जा रहा है उसकी इब्तदाई खदकशी इमाम गजाली ही की रहीन मिन्नत है। साबियन, उन्होंने अखलाक आम्मा का पूरा जायजा लिया। उन्हें उलमा, मशाइख, उमरा सलातीन, अवाम सबकी जिंदगी का मुताला करने के खूब मौके मिले थे। खुद चल फिर कर वो मशरिकी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा देख चुके थे। इसी मुताले का नतीजा उनकी किताब अहयाउल उलूम है, जिसमें उन्होंने हर तबके की अखलाकी हालत पर तनकीद की है, एक एक बुराई की जड़ और उसके नफ्सियाती और तमद्दुनी असबाब का खोज लगाया है और इस्लाम का सही अखलाकी मेयार पेश करने की कोशिश की है। सामिनन, उन्होंने अपने अहद के निज़ाम हुकूमत पर भी पूरी आज़ादी के साथ तनकीद की, बराह रास्त हुक्काम वक्त को भी इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाते रहे और अवाम में भी ये रूह फूकने की कोशिश करते रहे कि मुनफ़इलाना अंदाज से जबर जुल्म के आगे सर तस्लीम खम न करें, बल्कि आज़ाद नुक्ताचीनी करें। आहया में एक जगह लिखते हैं कि हमारे ज़माने में सलातीन के तमाम या अक्सर अम्वाल हराम हैं। एक और जगह लिखते हैं कि उन सलातीन को ना अपनी सूरत दिखानी चाहिए ना उनकी देखनी चाहिए। इंसान के लिए लाजिम है कि उनके जुल्म से बुग़्ज़ रखे, उनकी बका को पसंद ना करे, उनकी तारीफ ना करे, उनके हालात से कोई वास्ता ना रखे और उनके यहाँ रसाई रखने वालों से भी दूर रहे। एक और जगह इन आदाब परिस्तिशो उबूदियत पर नुक्ताचीनी करते हैं जो दरबारों में राइज थे।
उस माशरत की मजम्मत करते हैं जो बादशाहों और उमरा ने इख्तियार कर रखी थी, हत्ता कि उनके महल्लात, उनके लिबास, उनकी आराइश, हर चीज को नजस बतलाते हैं। इसी पर बस नहीं, बल्कि उन्होंने अपने अहद के बादशाह को एक मुफस्सिल खत लिखा जिसमें उसे इस्लामी तर्ज हुकूमत की तरफ दावत दी, हुक्मरानी की जिम्मेदारियां समझाईं और उसे बताया कि तेरे मुल्क में जो जुल्म हो रहा है, खा तू खुद करे या तेरे उम्माल करे, बहरहाल उसकी जिम्मेदारी तुझ पर है। एक दफा मजबूरन दरबारे शाही में जाना पड़ा तो दौरान गुफ्तगू बादशाह के मुंह दर मुंह कहा कि तेरे घोड़ों की गर्दन साजे जर्री से ना टूटी तो क्या हुआ, मुसलमानों की गर्दन तो फाका कशी की मुसीबत से टूट गई। उनके आखिरी जमाने में जितने वुज़रा मुकर्रर हुए, करीब करीब सभी को उन्होंने खतूत लिखे और रियाया की तबाहाली की तरफ तवज्जो दिलाई। एक वजीर को लिखते हैं, जुल्म हद से गुजर चुका है। चूंकि मुझे अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना पड़ता था, इसलिए तकरीबन 1 साल से मैंने तूस का कयाम तर्क कर दिया है ताकि बेरहम और बेहया जालिमों की हरकत देखने से खुलासे पाऊं। इब्ने खुल्दून के बयान से यहाँ तक मालूम होता है कि वो एक ऐसी सल्तनत के क़याम के ख्वाह थे जो खालिस इस्लामी उसूल पर हो, ख्वाह दुनिया के किसी गोशे में हो। चुनाचा मगरिब अक़सा में मुवाहिदीन की सल्तनत उन्हीं के इशारे से उनके एक शागिर्द ने कायम की, मगर इमाम मौसूफ के कारनामे में ये सियासी रंग महज ज़िमनी हैसियत रखता था। सियासी इनकलाब के लिए उन्होंने कोई बाकायदा तहरीक नहीं उठाई, न हुकूमत के निज़ाम पर कोई खफीफ से खफीफ असर डाल सके। उनके बाद जाहिलियत की हुक्मरानी में मुसलमान कौमों की हालत खराब से खराब तर होती चली गई, यहाँ तक कि 1 सदी बाद तातारी तूफान के दरवाजे मुमालिके इस्लामिया पर टूट पड़े और उसने उनके पूरे तमद्दुन को तबाह करके रख दिया। इमाम गजाली के तजदीदी काम में इल्मी और फिक्री हैसियत से चंद नकाइस भी थे और वो 3 उन्वानात पर तकसीम किए जा सकते हैं। एक किस्म उन नकाइस की जो हदीस के इल्म में कमजोर होने की वजह से उनके काम में पैदा हुए। हाशिया, ताजुद्दीन सबकी ने तबकात शाफिया में ऐसी तमाम अहादीस को जमा कर दिया है जिन्हें इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम में दर्ज किया है और जिनकी कोई सनद नहीं मिलती। मुलाहिजा हो, तबकात हिस्सा 4 सफ़ा 145 तसफ़ा 182। दूसरी किस्म उन नकाइस की जो उनके जहन पर अक़लियात के गलबे की वजह से थी, और तीसरी किस्म उन नकाइस की जो तसव्वुफ की तरफ जरूरत से ज्यादा माइल होने की वजह से थे। इन कमजोरियों से बचकर इमाम मौसूफ के असल काम यानी इस्लाम की ज़हनी और अखलाकी रूह को जिंदा करने और बिद्दत और जलालत की आलाइशों को निज़ाम फ़िक्र और निज़ाम तमद्दुन से छांट छांट कर निकालने के काम को जिस शख्स ने आगे बढ़ाया वो इब्ने तैमिया थे। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इमाम गजाली के 150 बरस बाद 7वीं सदी के निस्फ आखिर में इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। हाशिया, पैदाइश 661 हिजरी बामुताबिक 1262 ईस्वी, वफात 728 हिजरी बामुताबिक 1327 ईस्वी। ये वो जमाना था कि दरिया सिंध से फरात के किनारों तक तमाम मुसलमान कौमों को तातारी गारतगर पामाल कर चुके थे और शाम की तरफ बढ़ रहे थे। मुसलसल 50 बरस की इन शिकस्तों ने, दायमी खौफ और बदअमनी की हालत ने और इल्म और तहजीब के तमाम मरकजों की तबाही ने मुसलमानों को इस मर्तबा पस्ती से भी बहुत नीचे गिरा दिया था जिस पर इमाम गजाली ने उन्हें पाया था। नए तातारी हमला आवर अगरचे इस्लाम कबूल करते जा रहे थे, मगर जाहिलियत में ये हुक्मरान अपने पेशरो तुर्की फरमा रवाओं से भी कई कदम आगे थे। उनके जेर असर आकर अवाम और उल्मा व मशाइख और फुक़हा व क़ज़ा के अखलाक और भी ज्यादा गिरने लगे। हाशिया, उस वक्त के उल्मा की हालत ये थी कि हलाकू खान ने बगदाद पर तसल्लुत जमाने के बाद उल्मा से फतवा तलब किया कि सुल्तान काफिर आदिल और सुल्तान मुस्लिम जालिम में से कौन अफजल है, तो उलमाए कराम ने बिला तकल्लुफ फैसला सादर फरमाया कि सुल्तान काफिर आदिल अफजल है। उस वक्त के उमरा का हाल ये था कि दुनिया इस्लाम में तातारियों की चीरादस्ती से बच बचाकर मुसलमानों की जो सबसे बड़ी सल्तनत रह गई थी वो मिस्र और शाम के ममालिक की सल्तनत थी, और उन्होंने अपनी सल्तनत के कानून को
दो हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक शख्सी कानून जिसका दायरा असर निकाह, तलाक और विरासत वगैरह उमूरे मजहबी तक महदूद था और उन मामलात में फैसले शरीयत के मुताबिक होते थे। दूसरा मुल्की कानून जो तमाम दीवानी और फौजदारी मामलात और पूरे निज़ाम सल्तनत पर हावी था, और ये सरासर चंगेज खानी दस्तूर पर मबनी था। मजीद बरा शरीयत का शख्सी कानून जो कुछ भी मुल्क में राइज था सिर्फ अवामुन नास के लिए था। रहे हुक्मरान तो वो मुसलमान होने के बावजूद अक्सर व बेशतर अपने शख्सी मामलात तक में तूराए चंगेजी की पैरवी करते थे, ना कि शरीयत मोहम्मदी की। उनके गैर इस्लामी रवैये का अंदाजा करने के लिए सिर्फ इतनी बात काफी है कि मकरीजी के बयान के मुताबिक उन्होंने अपनी सल्तनत में कैबा खानों की खुली छुट्टी दे रखी थी और जनाने बाजारी पर एक टैक्स लगा दिया गया था जिसकी आमदनी दौलत इस्लामिया के खजाना आमरा में दाखिल की जाती थी। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के हम असर उलमा और सूफिया अक्सर व बेशतर उस सल्तनत के वजीफा ख्वार थे। उन्हें खुदा के दीन की ये मजलूमी तो एक लम्हे के लिए भी न खटकी। अलबत्ता जब इब्न तैमिया ने उठकर इस्लाह की कोशिश की तो उन लोगों की रगे हमीयत यकायक भड़क उठी और उन्होंने फतवे देने शुरू कर दिए कि ये शख्स जाल और मुज़िल है, तजसीम और तजबीह का कायल है, तरीक़े सल्फ से मुनहरिफ है, तसव्वुफ का और अहले तसव्वुफ का दुश्मन है, सहाबा और आयमा तक के मुंह आता है, दीन में नई नई बातें निकालता है, इसके पीछे नमाज जायज नहीं और इसकी किताबें जला देने के लायक हैं। तकलीद जामिद इस हद को पहुंच गई कि मुख्तलिफ फ़िक़ही और कलामी मज़ाहिब गोया मुस्तकिल दीन बन गए। हाशिया, इस हालत का अंदाजा करने के लिए भी सिर्फ एक नमूना काफी है। दमिश्क में एक मदरसे रवाइया के बानी ने अपने वक्फ नामे में लिख रखा था कि इस मदरसे में यहूदी, ईसाई और हम्बली दाखिल नहीं हो सकते। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि फ़िक़ह व कलाम के जुज़ियात पर मनाजरा बाजियां करते हुए नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि एक शाफ़ई और अशरी हजरत इमाम बिन हम्बल के पैरों को यहूद व नसारा के साथ शामिल करने में भी तामुल ना करता था। इज्तिहाद मासियत बनकर रह गया। बिदात व खराफात ने शरई हैसियत इख्तियार कर ली। किताब व सुन्नत की तरफ रुजू करना ऐसा गुनाह हो गया जो किसी तरह माफ नहीं किया जा सकता। उस दौर में जाहिल व गुमराह अवाम, दुनिया परस्त या तंग नजर उलमा और जाहिल व जालिम हुक्मरानों की ऐसी संगत बन गई थी कि उस इत्तेहाद सलासा के खिलाफ किसी का इस्लाह के लिए उठना अपनी गर्दन को कसाब की छुरी के सामने पेश करने से कम ना था। यही वजह है कि गो उस वक्त सहीउल ख्याल, वसीउन नजर, हकीकत शनास उलमा नापैद न थे, न उन सच्चे और असली सूफियों की कमी थी जो ज्यादा हक पर गामजन थे, मगर जिसने उस तारीख जमाने में इस्लाह का अलम उठाने की जुर्रत की वो एक ही अल्लाह का बंदा था। इब्न तैमिया कुरान में गहरी बसीरत रखते थे, हत्ता के हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने शहादत दी कि तफसीर तो इब्न तैमिया का हिस्सा है, हदीस के इमाम थे। यहां तक कि कहा गया जिस हदीस को इब्न तैमिया ना जानते हों वो हदीस नहीं है। तफक्कुहा की शान ये थी कि बिलाशुबा उन्हें मुज्तहिद मुतलक का मर्तबा हासिल था। उलूम अक़लिया, मंतक, फ़लसफ़ा और कलाम में इतनी गहरी नज़र थी कि उनके मासरीन में से जिन लोगों का सरमाया नाज यही उलूम थे वो उनके सामने बच्चों की हैसियत रखते थे। यहूद और नसारा के लिटरेचर और उनके मजहबी फ़र्क़ों के इख्तलाफात पर उनकी नज़र इतनी वसी थी, गोल्ड ज़हर के बकौल कोई शख्स जो तौरात की शख्सियतों से बहस करना चाहे वो इब्न तैमिया की तहकीकात से बेनियाज नहीं हो सकता। और इन सब इल्मी कमालात के साथ उस शख्स की जुर्रत व हिम्मत का ये हाल था कि इजहार हक में कभी किसी बड़ी से बड़ी ताकत से भी न डरा, हत्ता के मुतअद्दिद मर्तबा जेल भेजा गया और आखिरकार जेल ही में जान दे दी। यही वजह है कि वो इमाम गजाली के छोड़े हुए काम को उनसे ज्यादा खूबी के साथ आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ। इब्न तैमिया के तजदीदी काम का खुलासा ये है। नंबर 1, उन्होंने यूनानी मंतक व फ़लसफ़ा पर इमाम गजाली से ज्यादा गहरी और जबरदस्त तनकीद की और उसकी कमजोरियों को इस तरह नुमाया करके दिखाया कि अक़लियात के मैदान पर उसका तसल्लुत हमेशा के लिए ढीला हो गया।
उन दोनों इमामों की तनकीद के असरात मशरिक ही तक महदूद न रहे बल्कि मगरिब तक भी पहुंचे। चुनाचा यूरोप में अरस्तु की मंतक और मसीही मुतकल्लिमीन के यूनान ज़दा फ़लसफ़ियाना निज़ाम के खिलाफ पहली तनकीदी आवाज़ इमाम इब्न तैमिया के 250 बरस बाद उठी। नंबर 2, उन्होंने इस्लाम के अकायद, अहकाम और क़वानीन की ताईद में ऐसे ज़बरदस्त दलाइल कायम किए जो इमाम गज़ाली के दलाइल से ज़्यादा माक़ूल भी थे और इस्लाम की असल रूह के हामिल होने में भी उनसे बढ़े हुए थे। इमाम गज़ाली के बयान और इस्तदलाल पर इस्तिलाही माक़ूलात का असर छाया हुआ था। इब्न तैमिया ने उस राह को छोड़कर अक्ल आम यानी कॉमन सेंस पर तफ़हीम व तबय्युन की बिना रखी, जो ज़्यादा फितरी, ज़्यादा मौसर और ज़्यादा कुरान और सुन्नत के करीब थी। ये नई राह पिछली राह से बिल्कुल अलग थी। जो लोग दीन के अलंबरदार थे वो फ़कत अहकाम नकल कर देते थे, तफ़हीम ना कर सकते थे, और जो कलाम में फंस गए थे वो तफलसुफ और इस्तिलाही माक़ूलात को ज़रिया तफ़हीम बनाने की वजह से किताब व सुन्नत की आला स्पिरिट को कम व बेश खो देते थे। इब्न तैमिया ने अकायद व अहकाम को उनकी असल स्पिरिट के साथ बेकमो कास्त बयान भी किया और फिर तफ़हीम का वो सीधा सादा फितरी ढंग इख्तियार किया जिसके सामने अकल के लिए सर झुका देने के सिवा चारा ना था। इसी जबरदस्त कारनामे की तारीफ इमाम हदीस अल्लामा ज़हबी ने इन अल्फाज में की है, यानी इब्न तैमिया ने खालिस सुन्नत और तरीक़ा सल्फ की हिमायत की और उसकी ताईद में ऐसे दलाइल और ऐसे तरीक़ों से काम लिया जिनकी तरफ उनसे पहले किसी की नजर न गई थी। नंबर 3, उन्होंने तक़लीद जामिद के खिलाफ सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई बल्कि कुरूने ऊला के मुज्तहिदीन के तरीके पर इज्तिहाद करके दिखाया। बराह रास्त किताब व सुन्नत और आसार सहाबा से इस्तिंबात करके और मुख्तलिफ मज़ाहिब फ़िक़ा के दरमियान आज़ाद मुहाकमा करके कसीरुल तादाद मसाइल में कलाम किया, जिससे राह इज्तिहाद असर नौबाज हुई और क़ुव्वत इज्तिहादिया का तरीक़ इस्तेमाल लोगों पर वाज़े हुआ। इसके साथ उन्होंने और उनके जलील क़दर शागिर्द इब्न क़य्यम ने हिकमत तशरी और शारे के तर्ज कानून साजी पर इतना नफीस काम किया जिसकी मिसाल उनसे पहले के शरई लिटरेचर में नहीं मिलती। ये वो मवाद है जिससे उनके बाद इज्तिहादी काम करने वालों को बेहतरीन रहनुमाई हासिल हुई और आइंदा होती रहेगी। नंबर 4, उन्होंने बिदात और मुशरिकाना रसूम और एतकादी और अखलाकी गुमराहियों के खिलाफ सख्त जहाद किया और इस सिलसिले में बड़ी मुसीबतें उठाईं। इस्लाम के चश्मे साफी में उस वक्त तक जितनी आमेजिशें हुई थीं, उस अल्लाह के बंदे ने उनमें से एक को भी ना छोड़ा। एक एक की खबर ली और उन सब से छांट कर ठेठ इस्लाम के तरीके को अलग रोशन करके दुनिया के सामने रख दिया। इस तनकीद और तनकी में उस शख्स ने किसी की रो रियायत ना की। बड़े बड़े आदमी जिनके फजलो कमाल और तकद्दुस का सिक्का मुसलमानों की सारी दुनिया पर बैठा हुआ था, जिनके नाम सुनकर लोगों की गर्दनें झुक जाती थीं, इब्न तैमिया की तनकीद से ना बच सके। वो तरीके और आमाल जो सदियों से मजहबी हैसियत इख्तियार किए हुए थे, जिनके जवाज बल्कि इस्तेहबाब की दलीलें निकाल ली गई थीं और उलमाए हक भी जिनसे मदाहनत कर रहे थे, इब्न तैमिया ने उन्हें ठेठ इस्लाम के मनाफी पाया और उनकी पुरजोर मुखालफत की। इस आजाद ख्याली और साफ गोई की वजह से एक दुनिया उनकी दुश्मन हो गई और आज तक दुश्मन चली आती है। जो लोग उनके अहद में थे उन्होंने मुकदमात कायम करा के उन्हें कई बार जेल भिजवाया और जो बाद में आए उन्होंने तकफीर और तजलील करके अपना दिल ठंडा किया। मगर इस्लाम खालिस व महज के तबा का जो सूर उस शख्स ने फूंका था, उसकी बदौलत एक मुस्तकिल हरकत दुनिया में पैदा हो गई जिसकी आवाज़ बाज़गश्त अब तक बुलंद हो रही है। इस तजदीदी काम के साथ उन्होंने तातारी वहशत व बर्बरियत के मुकाबले में तलवार से भी जहाद किया। उस वक्त मिस्र और शाम इस सैलाब से बचे हुए थे। इमाम ने वहां के आम मुसलमानों और रईसों में गैरत व हमियत की आग फूंकी और उन्हें मुकाबले पर आमादा किया। उनके हम असर शहादत देते हैं कि मुसलमान तातारियों से इतने मरूब हो चुके थे कि उनका नाम सुनकर कांप उठते थे और उनके मुकाबले में जाते हुए डरते थे। का अन्नमा युसाकूना इलल मौत। मगर इब्न तैमिया ने
ان میں جہاد کا جوش پھونک کر شجاعت کی سوئی ہوئی روح کو بیدار کر دیا۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ وہ کوئی ایسی سیاسی تحریک نہ اٹھا سکے جس سے نظام حکومت میں انقلاب برپا ہوتا اور اقتدار کی کنجیاں جاہلیت کے قبضے سے نکل کر اسلام کے ہاتھ میں آ جاتی۔